नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है बेटा? मोलारिटी, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो लास्ट क्लास में, इजंट इट? मोलारिटी का फॉर्मूला, सारी चीज हमने डिस्कस किया. तो मैं डायरेक्टली जाता हूं अभी, इजंट इट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोलारिटी में जाता हूं, डायरेक्टली यहां पर जा रहा हूं. तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया. विल टेक व्हाट? मोलारिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कैसे डिनोट करते हैं मोलारिटी को? कैपिटल एम. ओके, डेफिनेशन already we know this one. ध्यान से. Now when you write the formula of molarity, beta, when you write the formula of molarity, what formula we are writing for molarity? Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in liter, है ना? This is the formula we are using for calculating the molarity. Now what is the relation between molarity and volume of the solution? What type of relation you are having here? Inversely proportional. Inversely proportional. That means if we increase the volume, molarity, what happen here? Decreases. Okay, this is very important beta, especially in MCQs type of questions, passage type of questions, they may ask this type of things. If you increase the molarity, if you increase the volume, molarity will decreases. If you decrease the volume, molarity will increases. Based upon the formula, you will get this one, because molarity and volume of the solution both, isn't it, is inversely proportional to according to the formula. Next, one more thing, if you observe, molarity changes with temperature. Now molarity depends upon what? Temperature now, because you have taken the volume here, so definitely it will, with respect to temperature, changes. Okay, because why I have taken temperature here? Because volume always depends upon temperature, है ना बेटा? Correct or not? Volume always what happened? Directly proportional to temperature. Which formula it is beta? Charles law. So with rise in temperature, volume generally what happened? Increases. Correct or not? Yes, sir. According to Charles law, what I am saying, volume is directly proportional to temperature. Correct or not? Charles law, right? So when volume is directly proportional to temperature and molarity depends upon the volume, so definitely molarity also depends upon what here? Temperature. Understood what I am saying? So what I am saying here, with fall in temperature, volume is decreasing. Correct or not? In that case, this point I have to rise here. With increasing the temperature, molarity definitely what happen here? Decreases. This is very, very important point. With decreasing temperature, molarity what happen here? Increase. So I am writing here molarity. क्या लिखना है आपको बेटा? Inversion temperature. This is also very important. So, next after that, some are very important terms बेटा. डेसी मीन्स क्या लेना है आपको? 0.1 लेना है बेटा. जब भी आपको डेसी बोलते हैं, डेसी मोलार ऐसा बोलेगा आपको, 0.1 मोलार लेना है. क्योंकि क्वेश्चन में कभी बार क्या देते हैं ना, मोलारिटी नहीं देते बेटा, 0.1 मोल ऐसा नहीं देते. क्या देते वो? एक्चुअली डेसी मोलार बोलते हैं. डेसी मोलार मीन्स आपको क्या लेना है? 0.1. मोलारिटी इज इक्वल टू आपको क्या लेना है? 0.1 लेना है. नेक्स्ट, सेंटीमोलार मीन्स आपको कितना लेना है? 0.01, 10 to the power of -2 लेना है. यहाँ पर 10 to the power of -1 लेना है. मिली बोले तो आपको कितना लेना है? आपको 10 to the power of -3 लेना है आपको. Okay, most of the cases what happen, they will give this type of data for us in calculation point. Decimolar, centimolar, millimolar. In that case, the molarity I will take as like this, isn't it? Next, सेमीमोलार भी बोलते सभी. सेमीमोलार का मतलब क्या लेना है आपको? 0.5 लेना है आपको. 0.5 मोलार लेना है आपको. डेका 10 molar, like that you have to take.
So all of you take down this one beta. This is very important for you. Okay, this deci, centi, milli, semi, deca, which is very, very important for you, right? Next question is that, will the molarity of the solution at 50 degrees Celsius same, less, more when the molarity at 25 degrees Celsius? Molarity at 25 degrees Celsius, molarity at 50 degrees Celsius. These two will be same or different, less than or greater than. Anybody? अभी हमने discuss. If temperature is increased, molarity what happened here? Decreases. Definitely what happened? In the case of 50 degrees Celsius, molarity what happened here? Decreases. Isn't it? It will be lesser than what? 25 degrees Celsius. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. थोड़ा आपको क्या रिमेंबर करना है इसमें, याद क्या करना है आपको? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू temperature. Kyun? Because volume is directly proportional to temperature. When volume is directly proportional to temperature, this is the formula. All of you note down these three formulas in your notebook. If you note down these formulas, remaining will be very, very simple. Volume directly proportional to temperature, molarity inversely proportional to volume, and molarity inversely proportional to temperature. ये आपको लेना है. आपको understood? कोई डाउट है इस पे आपको? No, sir. Now, what is the meaning of 1 molar NaOH? आपको वेट कितना लेना है इसमें? 1 molar NaOH में आपको वेट कितना लेते हैं आप लोग? कैसे लेना है आपको 1 molar NaOH में? वेट मेरे को कैलकुलेट करना है बेटा. I want to calculate the what is the mass, weight of what? NaOH. Mass of NaOH आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करना है इसमें? 1 molar of NaOH दिए तो क्या करना है इसमें? फॉर्मूला लिखना है. मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH, ओके, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन. देखो बेटा, मैंने डेफिनेशन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना लिया बेटा? Sir, 100 ml. 1 liter, 1000 liter नहीं बेटा, 1 liter or 1000 ml. Okay, now take as 1000 ml or 1 liter, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना? मोलारिटी कितना है बेटा? यहाँ पर 0.1 मोलार है ना, 1.0 है, तो इसको 1 ले लो ऐसे 1. आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है. Now a gram molecular weight of NaOH always will be constant. It never changes beta. So it will be always what happened? 40 grams. Now weight of NaOH is equal to कितना हो जाएगा? 40 grams हो जाएगा. Understood? That means what I'm saying here, if we know the molarity, what we can calculate? The mass of the, how much NaOH is present in that solution, we can easily calculate. I'm repeating, if we know the molarity, we can calculate what amount of NaOH you're having in that one. For how much ml of the solution? 1000 ml of the solution. For 1 liter of the solution, we can easily calculate it, right? Now, what happens to the molarity if the solution of the solution is heated? Because just now molarity decreases, sir. It will decrease. ऐसा भी पूछ सकते क्वेश्चन आपको, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. Tell me बेटा, which is correct statement? Sir, both A and B. A and B are correct statement. नॉर्मलिटी नहीं है हमको, सिलेबस में नहीं, छोड़ दो इसको. हम क्या करेंगे अभी? मोलारिटी डिस्कस करेंगे. स्टार्ट नो मोलारिटी नो. मोलारिटी ले लेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. नाउ मोलारिटी डिनोटेड बाय व्हाट? स्मॉल m, राइट? दिस इज व्हाट? स्मॉल m बेटा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस यू आर ऑब्जर्विंग इन मोलारिटी एंड मोलालिटी? कौन सा डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा मोलालिटी का. अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, सोल्यूट, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ kilograms and liter. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके, इन लीटर, ये फॉर्मूला है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है आपको, वेट सॉल्वेंट इन केजीस, ये फॉर्मूला है। सो डिफरेंस कहां आ रहा है आपको? डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां पर आ रहा है डिनोमिनेटर में। मोलारिटी कैपिटल एम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, in molality small m, weight of the solvent in kg. This is the difference you are observing. This is the difference, okay, in molality and molarity. So definition क्या हो जाएगा? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent is nothing but called molality, right? और बोला अभी हम मैंने लिखा इधर, वो फॉर्मूला आपको लेना है। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू टेक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट्स क्या हो जाएगा? मोल्स पर केजी, यहां पर मोल लेना है आपको, यहां पर केजी लेना है, तो यूनिट्स हो जाएगा। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है बेटा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? व्हाट इज द रीजन? Molarity is dependent on temperature, but molarity is independent to temperature. Can you tell me what is the reason? So because we are taking mass. You are taking mass never changes with respect to temperature. That is the reason. Now, when I compare molarity and molality, which one is better, beta? When you are making Molality. this one, molality is what better one, because it does not depend upon the temperature. If you change the temperature, the concentration never changes. Therefore, ultimately, we are going to get what ideal solutions only we get. Now, which formulas है बेटा? We'll discuss here. Molality का जो formulas हमने simplify कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा, क्योंकि मोल का फॉर्मूला कितना है? What is the formula of mole? Weight by ग्राम मार्कुलर वेट, हो गया ना। मास ऑफ द सॉल्वेंट मैंने इसमें केजी लिया, इसमें ग्राम, व्हेन यू टेक ग्राम 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, दैट इज द रीजन यू टेक लाइक दिस, ओके। दिस आर द फॉर्मूलास ऑलरेडी वेल नोन बाय यू। लेट मी टेक हियर, ये तो हो गया, अभी हमने डिस्कस किया। डज मोलारिटी चेंज विद टेम्परेचर? नो, नेवर डिपेंड। Why 1 molar aqueous solution is more concentrated than 1 molar solution? This is a question. Sir, because molality is temperature independent. See, 1 molar means क्या है बेटा? General definition, 1 mole of solute in 1000 ml of solution, है ना बेटा? 1 mole you taken in 1000 ml of solution, right? Whereas 1 molar means what? Molarity is equal to 1. In this 1 mole of solute in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. Isn't it? This is the reason what happened. Isn't it? 1 molar aqueous solution more concentrated than 1 molar solution, because you are taking in the solution. This one you are taking in the solvent here, isn't it? Now, अभी आप ये कर सकते हैं मोलारिटी फार्मूला। मोलारिटी फार्मूला में लिख रहा हूं बेटा, m is equal to, what is the formula we are having here? Weight of solute. Now, ग्लूकोज क्या है बेटा? सोल्यूट है इधर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट, राइट? फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मैं ग्राम से ले रहा हूं तो 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लेता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेता हूं, इन ग्राम में लेता हूं। अभी बोलो बेटा, वेट ऑफ द सोल्यूट कैसे लेने हैं आपको? 10% बोल रहे हैं इसमें, तो बोलो बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना लेना है आपको? 10 grams. 10 ग्राम। बेटा ग्लूकोज कितना लेना है आपको? 10 ग्राम्स लेना है।
नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना है आपको? सॉल्वेंट मतलब 90 grams. 90 grams. 90 ग्राम्स लेना है आपको, है ना? सब्स्टिट्यूट करो बेटा, ऑल ऑफ यू डू दिस प्रॉब्लम नाउ। ग्लूकोज का ग्राम मास कार्बोहाइड्रेट कोई बता सकते हैं? 180. 180, वेरी गुड। वेट ऑफ द सॉल्वेंट 90। तो ये कैलकुलेट करो, आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आया आपको? मोलारिटी आया 0.61। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, यूनिट्स कंपल्सरी आपको लिखना है, मोल पर केजी, अदरवाइज स्मॉल एम लिखो। अगर ये याद नहीं रहे तो स्मॉल एम, यूनिट्स कंपल्सरी आपको लिखना है, मोल पर केजी नहीं तो मोलालिटी। एक क्वेश्चन ले लो, मैं आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क ले लो बेटा, टेक एज होमवर्क दिस वन, नोट डाउन द क्वेश्चन, टेक एज होमवर्क। Take this one as a homework. 5 grams of NaOH, 450 ml of solution. ये आपका नोटबुक में रहते हैं, टेक्स्ट बुक में रहते हैं ये प्रॉब्लम। 5 grams of NaOH in 450 ml. Excuse me, sir. सर हाँ, एक डाउट था सर। बोलो जल्दी सर बोलो। 1 मोलार सोल्यूशन सर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे, मतलब सर वो क्वेश्चन था ना सर पहले का, सर वो हाँ। समझा नहीं सर। हाँ बोलता हूँ। देखो बेटा, यही प्रॉब्लम हमने किया, 20% एक प्रॉब्लम हमने किया। देखो देखो, मोल फ्रैक्शन, इथिलीन ग्लाइकॉल दिया, इजंट इट, और इसका फॉर्मूला दिया, और बाकी का क्या रहते हैं, वाटर रहते हैं, है ना? ये प्रॉब्लम कर सकते हैं आप नोटबुक में 2.1। ये सारी प्रॉब्लम आपको करना है। मोलारिटी अभी ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको ये भी करना है आपको। अब लीटर को मीटर भी ले सकते हैं, ऐसा ये यूनिट्स भी ले सकते हैं आप। ये प्रॉब्लम भी होमवर्क करो बेटा, 2.3 मोलालिटी का। आज आपको पूरा प्रॉब्लम्स मोलालिटी का, मोलारिटी का कंप्लीट करना है, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम हमने कल किया शायद, 2.1 का प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया, ये भी होमवर्क कर सकते नहीं कर सकते? सर वो आज आपने दिया है होमवर्क। हाँ, ये कंप्लीट करो 2.1, 2.2 और 2.3 कर सकते आप। मोलारिटी करना है, 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट दिया, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी दिया बेटा। इसका मोलार मास में भी अराउंड 310 ऐसा रहेगा बेटा। मोलार मास ऑफ 310 ऐसा ले लो, इसका मोलार मास रफली यू टेक एज 310 ऐसे, राइट? नाउ व्हाट अबाउट बी? बी इज पॉसिबल फॉर यू, मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। बी एक बार ले लो। देखो 30 ml ऑफ 0.5 MH2SO4, this is diluted. After diluted, this volume is become how much better? 500 ml. Now what they are asking, what is the molarity of this solution? If you diluted to what, 500 ml,
What is the molarity? Which formula I would take here? Which formula I would take, beta? M1 V1 M1 V1 is equal to M2 V2. M1 V1 is equal to M2 V2 फॉर्मूला लेना है. M1 ये है, V1 30 है, V2 आपको 500 लेना है, because what they are saying, it is diluted to 500. That means when you add water, complete solution become here 500. That means कितना आपने ऐड किया? 470 ml ऐड किया आपने, है ना? ये कर सकते हैं ना? ठीक. नेक्स्ट 2.5 ले लेंगे. 2.5. Calculate the molarity, mole fraction of potassium added if the density is what? 1.202 of solution दिया इसमें, और 20% of aqueous potassium. इसमें क्या दिया बेटा इसने? 20 grams of potassium iodide. Correct? Next, 80 grams कितना है बेटा? कौन सा है 80 grams? What is that? 80 grams क्या है बेटा? सॉल्वेंट. वाटर है ना? तो आप मोलारिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना मोलारिटी? यस सर. आपको ये कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इसमें बाद में क्या दिया इसने? 1.202 इज व्हाट एक्चुअली है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इसने दिया, कितने दिया इसने? 1.202 grams per ml. If density is 1.202 for 1 ml, 1000 के लिए कितना हो जाएगा? 1000 ml के लिए कितना हो जाएगा बेटा? वेट कितना हो जाएगा? 1 ml के लिए 1.2 ले लो. 1 ml के लिए 1.2 ले लो. 1000 ml कितना हो जाएगा? 0.02 ग्राम्स हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यही होता है ना आपका. डेंसिटी मतलब क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, राइट? इसमें आपको वॉल्यूम आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो. किसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वेयर इन द मोलारिटी आएगा आपको. मोल फ्रैक्शन तो यहाँ ये ले तो आपको आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा, मोलारिटी आएगा, है ना? ये कैलकुलेट करो बेटा. सो दीज आर ऑल व्हाट होमवर्क टुडे. ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर होमवर्क फॉर यू. अंडरस्टूड? मैं कल से मैं सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करता हूं बेटा. आई विल स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड सॉल्युबिलिटी, राइट? ट्राई टू कंप्लीट अप टू हियर. यहां तक पूरा सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेस्ट क्वेश्चंस आपको करना है. नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में देखो, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन का डेफिनेशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्मिंग and each with example. 9 type of solutions you have to explain here. 9 type of solution. Gas in gas, gas in liquid, liquid in liquid, like that. Give an example of solid solution which solute is gas. Wherever solute is gas, you can give one example. Can anybody बोल सकते हैं solute gas में? Gas. Example of solid solution which solute is gas. Hydrogen adsorbed on palladium. You can give the definitions of mole fraction, molarity, mass percentage. यहां तक करो आप लोग. यहां तक आपको होमवर्क करना है. आज होमवर्क है, पूरा होमवर्क आपको आज करना है. आज कल से मैं क्या करता हूं? सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करता हूं. अंडरस्टूड? आपका डाउट यही है ना? किसी ने एक डाउट पूछा अभी? यस सर. यस सर, यही है सर. Why 1 molar aqueous solution, isn't it, more concentrated than 1 molar solution? That means what they are saying, molarity is what happened.
ग्रेटर देन व्हाट, मोलालिटी। ना डिफरेंस कहां पर आ रहा है मोलालिटी और मोलालिटी में? मोलालिटी में आप 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, है ना, और मोलालिटी में आपने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, और ये सेम है, मोल 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज सेम हियर, ये सेम है, और ये क्या है, ये भी सेम है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है? यहां पर आप 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहां पर आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहां पर आप, इसमें क्या है बेटा, सोल्यूट नहीं है, जो आप इसमें ले रहे हैं इसमें सोल्यूट नहीं है ना, जो डिनोमिनेटर में सोल्यूट नहीं है बेटा। आपको मोलालिटी का फॉर्मूला ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले रहे हैं यहां पर सॉल्वेंट, इसमें सोल्यूट नहीं है। तो दिस इज द रीजन व्हाट हैपेन, दिस इज गेटिंग व्हाट, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज द डिफरेंस यू आर गेटिंग हियर। और कोई डाउट है? Remaining were absent today. Only 40 members present today. Now you can leave better. If you have any doubts, you can speak to me. Otherwise, what happened? You can leave now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.